swirl of the muffler and the swirl of the gamcha. Prime Minister Modi, of course, accepting with humility all the applause, of course, that the BJP Karyakartas are giving him there. Jubilant scenes coming in from the party headquarters. At the end of the day, also, GVL Narasimha Rao, do you believe that this election also is going to have a bearing on upcoming elections, including, of course, much watched ones like the one in West Bengal as well next year? That's an election which has also, that's a state which has also eluded your party for a while now. Do you believe this election win today and the landslide fashion with which it's happened is going to have bearing on the elections coming up next year in Assam, in West Bengal, and in, I think, in Tamil Nadu and Kerala too? You see, behind the NDA's success in this election, certainly apart from the Modi factor, apart from the Mahila factor, the Mehnat factor, the kind of hard work that BJP's top leadership puts in, I think you will have to see it to believe it. The kind of round the year activities, organizational activities that the BJP undertakes to strengthen its grassroots organization, to remain in connect with the people, to be accessible to them all through the year. This is certainly a major factor. And the next year's elections, the work has already begun. And post Bihar, certainly there will be a greater enthusiasm and greater energy into converting those electoral battles into very successful battles. And certainly Bengal is a state where we have come a long way, a state where we did not exist 10 years ago, a state where left had a unstoppable reign for a quarter century. I think we have actually pushed both the left and the TMC to the margins. We emerged as the main opposition party in Bengal in the last elections. And come next May, we will certainly we will pull all guns, all horses in our command to get power in Bengal, because Bengal has to develop. This MY, again you're a pollster, so I'll ask you this question, a former pollster rather. MY, pehle MY kaha jata tha Muslim Yadav. You know, the Samajwadi Party relied on it, the RJD also relied on it. It used to be a very important factor to win elections because of the caste coalition of these two communities. Now that is flipped. It has become Mahila and Yuva. Prime Minister Modi also says he doesn't want to see castes in the country. He only wants to see, you know, the poor, the farmer, etc. Mahila Yuva has now overtaken Muslim Yadav, it seems, GVL Rao. Yeah, because you see, when you talk of any Muslim Yadav or any other caste combinations, that actually is not a very healthy trend in a democracy. The Prime Minister's philosophy is that both in governance and also in our political strategy is to reach out to the most important segments of this country who need maximum support, whose support the BJP needs also to win elections, to give good governance. And this has really been, the Mahila vote has been a game changer in Bihar, in Maharashtra, in Madhya Pradesh, and in every other election. So I think increasingly, I think the women's vote is becoming a major winning factor for the BJP, and I think that's good news for the politics and the democracy. All right, thank you very much, GVL Narasimha Rao, for joining us with your perspective on this big story. Prime Minister Narendra Modi has now arrived there on the stage. Look at that. The crowd, of course, also now is doing that with him, accepting, of course, the twirling of the gamcha, the twirling of the muffler there by Prime Minister Modi, is accepting the applause with humility. Of course, sharing in the joy and jubilation of the BJP Karyakartas. Defence Minister Rajnath Singh also present, Home Minister Amit Shah present there too, as is BJP President JP Nadda. We're going to expect BJP President JP Nadda to speak in a very, very short while from now, and that will be followed by PM Modi's address as well. Prime Minister Modi, of course, will be giving a victory message, but also a mantra for the upcoming days ahead, because you know the BJP, they don't just stop and celebrate. They move forward with as much gusto as they, of course, have won this election as well. And their sights are going to be, as I was asking GVL Rao a short while back, on West Bengal and other states as well coming up next year. You can see there, look at that.
garland now, a grand garland for PM Modi, the star campaigner of the Bharatiya Janata Party, the biggest face, of course, for the NDA across the country, the prize vote getter for them, and this double engine, model of governance is really also getting a lot of traction across the country. Narendra Modi plus Nitish Kumar, the two ends have clearly been the deciding factor, the X factor for the BJP and the NDA. The opposition Mahagathbandhan was talking about their caste umbrella. That obviously has fallen flat. We've seen the VIP draw blank, the IIP too. The left and the Congress are down to terrible numbers as well. In fact, the IIP is just leading on one seat as we speak. And also we've seen, of course, almost washout of Prashant Kishore and the Jan Swaraj Party, and we've seen the NDA allies do very, very well as well. The HAM on 5 leads, the RLM on 4, and Chirag Paswan's LJP-RV on 19 as we speak. Okay, let's listen in to JP Nadda. He's addressing the workers of the BJP. आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं, बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया और यहां उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, यह रोड मैप विकास का जो था, उसने
जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं यहां यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, हमें जब 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। ये घटना भारत की जनता को और भारत की मतदाताओं को नागवार गुजरा है, नागवार गुजरा। उन्हें विश्वास नहीं रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई, और यह जो उनके मन में दर्द, यह जो कसक, यह जो टीस और जो मन व्यथित हुआ, यह जो पीड़ा हुई, भारत की जनता ने तय कर लिया कि अगले कोई भी चुनाव आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास बताएंगे और जनता को बताएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है। और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। हरियाणा में चुनाव हुआ, हमारी लोकसभा में सीटें कम हुई थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हरियाणा की जनता ने दिया और तीसरी बार हैट्रिक सरकार बना करके दी, ये हमारे ध्यान में आया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा में कुछ हमारी सीटें कम हुई, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरा। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सूद समेत वापसी की और पूरी की पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाई। हम लोगों ने यहीं, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इसको स्पष्ट रूप से देखा कि जब दिल्ली के चुनाव आए तो आपके नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते हुए दिल्ली की जनता ने भी 3 दशक बाद पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और अब भारत की जनता ने यह स्पष्ट मान लिया है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें भारत को विकसित भारत आपके नेतृत्व में ले जाना है, आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में भारत को विकास के साथ जोड़ करके चलना है। और इसलिए जब जब चुनाव हो रहे हैं, बार बार पूरी ताकत के साथ अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव में जनता वोट दे रही है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही हमको आज के नतीजों में भी बिहार की जनता ने बता दिया है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमको देखने को मिला है। और आपने तो बहुत पहले चुनावी सभा में बताया था कि 14 तारीख का इंतजार करें और 14 तारीख को बिहार की जनता स्पष्ट संदेश देगी, और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। यह अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को अटूट प्रेम और अटूट विश्वास का नतीजा है। यह डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को चाहिए, यह स्पष्ट संदेश है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अटूट विश्वास जनादेश ने दिया है, वहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर भी मुहर लगाई है और उनको भी ताकत दी है। इसलिए जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो केंद्र सरकार का आशीर्वाद, मोदी जी का अटूट विश्वास और विकास की प्रगति पर चलने वाला बिहार, और उसको कार्यान्वित करने के लिए
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा काम किया है, इसको भी हमको धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में समाज के सभी वर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है। उधर जो महागठबंधन था वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। वो बिहार को बिहारियों के सहारे नहीं चलाना चाहते थे, वो बिहार को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते थे और उनका समर्थन करते थे। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। मैं महिलाओं को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया और स्पष्ट संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के सुशासन ने वहां अच्छा काम किया है, उसको उन्होंने मुहर लगाई है। युवाओं का समर्थन हम लोगों को मिला, किसानों का समर्थन मिला, मेहनत का लोगों का समर्थन मिला, समाज के सभी वर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद के लिए पार्टी की ओर से मैं बिहार की मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महागठबंधन ने बिहार के लोगों का कदम कदम पर अपमान किया। सारे चुनाव प्रक्रिया को देखें तो उन्होंने बिहार के मतदाताओं को अपमानित करने के काम के बजाय और कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मोदी जी का विरोध करते करते छठी मैया का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, उनका भी अपमान किया। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता, उनको भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं किया, उसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बिहार की जनता ने ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर के एक स्पष्ट संदेश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को तो इस चुनाव के नतीजे ने करारा जवाब दिया ही है। जो लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए लगे हुए थे, घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश तो बिहार की जनता ने दिया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस, जो परजीवी पार्टी है, आज उसकी बिहार में स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई और उनकी वह दुर्गति हुई है, वो भी हमको देखने को मिला है। इसलिए मैं पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बूथ पर दिन रात एक किया, जिन्होंने इस सुनामी को ईवीएम में कैप्चर कराने में वोटरों के साथ खड़े होकर के उस वोट में तब्दील करने में जो उन्होंने योगदान किया है और जो उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक विजय, प्रचंड विजय हुई है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी कार्यकर्ता अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी देशप्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था।
और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी बूथ लेवल पर
तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। मैं जम्मू कश्मीर के नगरोटा के लोगों का और उड़ीसा में नुआपड़ा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की की है। साथियों, आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। साथियों, ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है। बिहार में जब जंगल राज था, तब क्या क्या होता था, ये भी आप जानते हैं। सरेआम मतदान केंद्रों पर हिंसा होती थी, मतपेटियां लूटी जाती थी। आज वही बिहार रिकॉर्ड मतदान कर रहा है। शांतिपूर्ण मतदान कर रहा है। हर किसी का मत दर्ज हुआ, हर किसी ने अपनी पसंद से मत दिया है। साथियों, रीपोलिंग के आंकड़े भी इस बदलाव की गवाही देते हैं। पहले बिहार में कोई चुनाव ऐसा नहीं रहता था जहां रीपोल नहीं होता था। जैसे 2005 से पहले सैकड़ों जगह पर रीपोलिंग हुई थी। 1995 में 1,500 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर रीपोलिंग हुई थी। साल 2000 के चुनाव में भी करीब 1,500 जगहों पर फिर से चुनाव करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही जंगल राज गया, वैसे वैसे स्थितियां ठीक होती गई और इस बार 2 चरण के इस चुनाव में कहीं पर भी रीपोल करने की नौबत नहीं आई। इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और इसके लिए मैं चुनाव आयोग,
चुनाव से जुड़े हर कर्मचारी, हमारे सुरक्षा बल, बिहार के जागरूक मतदाता, सभी का आज अभिनंदन करता हूं। और देश को आप सभी पर गर्व है, ये मैं गर्व से कहना चाहता हूं। साथियों, बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का ये दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके। साथियों, बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। साथियों, भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां हर परिवार को समानता, सम्मान और अवसर मिलते हैं, और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं, तेज विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। साथियों, नई सरकार के साथ एनडीए अब बिहार में 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है।
आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साथियों, भारत के विकास में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन लोगों ने हमेशा बिहार की एक झूठी छवि बनाई। इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। इन लोगों ने न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया, और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए। साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की आन बान शान, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य ये है कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसके महत्व से, इस संस्कृति से जुड़ सके। आपने भी इस बार देखा है कि जब इस बार छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंजे, तो हर कोई इस पावन पर्व में सम्मिलित होता दिखा। साथियों, पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया
जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में, हर परंपरा में लोग एनडीए को एक विश्वास और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है और इसी प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं,
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से
कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, आज मैं बिहार की एक एक मां, एक एक युवा, एक एक किसान, एक एक गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा, आपका भरोसा ये मेरा प्रण है। और मैं कहता हूं कि आपकी आशा मेरा संकल्प है। और मेरे नौजवान साथियों, आपकी आकांक्षा ये मेरी प्रेरणा है। हम मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो समृद्ध होगा, विकसित होगा। साथियों, भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने
भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साथियों, मैं एक बार फिर बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की ये वर्ष वंदे मातरम के 150 का महत्वपूर्ण वर्ष है। मेरे साथ बोले, वंदे 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 वंदे।